Welcome to the class, students. Today we are going to discuss about set theory. And here, complete theory I am going to discuss. And afterwards, some around 25 to 30 problems I would like to discuss in this one. Okay. Without wasting the time, let's go for this. But in detail, I would like to discuss this. After this, we'll go for functions also. Now you see here what exactly we are going to do. So what is that? First thing is set theory. What is that, Nana? Set theory. This is a topic. Set theory. What is mean by set? Yeah, in this topic, you see first definition is what is set? Well-defined collection of objects. Well-defined collection of object is called what set? And sets are denoted by capital letters and elements of sets are denoted by small letters. How? Here I'm giving the example. A, like this. A, E, I, O, U, you can write. Now I want to tell you that clearly what is set. Yes, set example. And this is not a set. You should have a clear idea about this. Set and not a set. This is I'm going to discuss now. Okay. This is one of the example I've taken here, set. The vowels in English alphabet. Okay, A, E, I, O, U, I can write like this. But whereas here, not a set example, collection of rich persons of India. A rich persons is not well defined. That's why it is not a set. One more example I want to take here. Right here, suppose if I take that natural number, set of natural number 1, 2, 3, etc. Infinite, okay. And here, second example I want to take here, collection of beautiful flowers. Okay, collection. What now? Collection of beautiful flowers. Collection of beautiful flowers. Okay, it is also not a set. Beautiful is not well defined. That's why it is not a set now. Okay, after this set, now we'll move on to the next. How we are going to represent the set. What is that? Representation. Okay, a representation of sets. Sets are represented in two ways, Nana. One is roster form. Roster form, we can call it as. Another one is set builder form. Okay, what is this? A roster form is what? Roster form means, you see, all the elements of the sets are separated by commas. Suppose if I take here 2, 3, 5, 7, if I write like this, and here set builder form, you see that set builder form, you should get clear idea. But that's the reason set builder form. Here. The same set I want to write here. Suppose if I indicate like this, then this A I can write X as that X is prime. Okay. Prime number. Okay. Less than 8. Yeah, 2, 3, 5, 7 are what? Prime number less than 8. Okay. What is the exact definition of this? Means all the elements of the sets are represented between in the parenthesis separated by commas. Whereas here, all the elements of the sets are represented by their common property in a set builder form means. And here roster form means all the elements of the sets are what? Separated by commas and written in between the parentheses. This is the definition of this. Yeah, as I said it to you that roster form means all the elements of the sets are separated by commas, are enclosed within the bracket. Like this. This is the one of the example. And here all the elements of a single set, okay, possess a single common property. Like this we are going to write. Separated by slash, etc., etc. Instead of writing this, this is the one of the best example I have given here. So sets are represented in two ways. Right? One is what? A roster form. The other one is set builder form. One example I have given. Now I want to move on to the next one.
This is a classification of sets. I want to go for classification of set. Yeah. In classification of set, the first one we are going to discuss about empty set. Okay, empty set. Empty set means you can say like this, a set which has no element. Okay, no element is called, you can say that empty set. Empty set denoted by what, Nana? Fine. Yeah, you can write like this. Right, one example is like this. Yeah, this is one example. Suppose if I said like this, suppose A, if I indicate A, chalega, no problem here. X says that 1 less than X less than 2. If I say that X is a natural number. Natural number. Okay, natural number between, simply if I said like this, between 1 and 2, if I said like this is also what? Empty set, simply I can say. Right, it is like this, Nana. The next one I would like to go for the next. Okay, second one I would like to discuss about this, Nana. What is that? Singleton. Singleton set, you can say. A set consists of having only one element. Okay, is called singleton set. Okay, singleton set. For example, if I write here 2 prime number, even prime, simply if I say that even prime, yes, singleton set, you can say. Now, after this one, third one, I'll go for this finite. Okay, finite set. Finite set means a set which has finite number of elements is called finite set. Okay, for example, here you see this, Nana, 1, 2, 3 up to, if I write like this, 10 numbers. Or another example I would like to take, A, E, I, O, U. This is also what? Finite. Right. Here you can say that you can discuss what? Cardinal number, Nana. Cardinal number of a set. Okay, cardinal number of a set. What does a cardinal number mean? The number of distinct element of a finite set A is called the cardinal number of set A. It is denoted by, see, it is, and it is denoted by n of A or mod A. If some people are going to write O of A also, they are going to write here. So not example here. Suppose example, you see what I'm taking example here. Suppose A, E, I, O, U. Suppose if I take this, so n of A is how much means 5. Suppose if I take here like this, Nana. So -1, 0, 3, like this if I take. What is n of A here? Is 3. 2 if I take here is one example. The other example is this one, Nana. Finite set. So now come to the next one. Next one is what? Infinite set. Fifth one is infinite set. What is this? A set, simple, a set which has, okay, infinite number of elements. A set which has infinite number of elements, okay, is called infinite set. Is called what, Nana? Infinite set. Next set. For example, natural number. 1, 2, 3. How many are there means infinite. This is one of the example. Okay, shall we go for the next one?
What is that? Next fifth definition is equal set. Equal set is two sets. See this? Two sets A, B are set B equal if every member of set A is a member of set B and every member of set B is a member of set A. This is, suppose if I say that A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, B I can write here 1, 5, 3, 2, 4. Yeah, I can say like this. Both are what? So simply I can say that what? Their cardinal number equal. And the elements are also what? Equal. Please remember, cardinal number is also equal. Elements are also what? Equal. Yeah. Here what, Nana? Equivalent is little different. Two sets A and B are, you see this, set to be equivalent sets if only the number of element in A and number of element in B. If this is condition, element may be different. Suppose if I said like this, A, E, I, O, U, I'll take this example, and B I would like to take 1, 2, 3, 4, 5. See, number of elements are same. These two are equivalent, but whereas here equal as well as number of elements are equal and elements are also equal. This is equal set means this is equivalent set nano. Now move on to the next one. Next example is what is mean by subset. Okay, we'll go for subset. Subset means, you see, suppose I would like to explain here. I'll write the definition later. First I like to explain here. 1, 2, 3, 4, 5. So up to 10 numbers are there in set A. B will contain some 2, 4, 6, 8, 10, suppose if it is. Then I can say that B is subset of A, I can say like this now. The same definition I want to write here. Okay. Yeah, you see this one. Let A and B be any two sets. If every element of set B is an element of A, then B is called subset of A. And it is written as what? Like this. Yeah, one example I've taken here. So suppose if I take like this, Nana, A is equal to something A, B, C, D, E. So all are there, up to Z is there. 26 elements, let us assume that. Suppose if I say that A is what? A, E, I, O, U. If I said, then I can write here A is subset of B. ऐसा लिख सकते हैं यार. And one more point you remember, every set. Okay. Every set is subset to itself. That's why we are writing this symbol. Why we are writing is equal to symbol? A is subset of this. And second point is empty set is, see this, Nana. Empty set is subset to every set. Subset to every set. Every set. You can say like this. Empty set is subset to anything. Anything you take down, subset to A, whatever you want, you can write like this. Right. So here writing A, every set means A is subset to A, I can write. Sorry, A is subset to A, empty set is subset to every. That's why here you remember subset symbol is what? Here like this now. It is in this way, equal to is also there. Right. Now after this one, I want to tell you that what is mean by proper subset that I want to write here. Let me go for the next page. Yeah, proper set is like this. If A is subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B. For example, here I want to take example for better understanding. Example is B is equal to
2, 4, 6, 8, 10 I have taken. And if I take A is equal to 2, 4, 6, no doubt that A is proper subset of B, like this, because you know very well that these two are never equal. Never equal. That's why here subset means symbol is like this. Proper subset is symbol is like this. Right? Proper is subset is symbol is like this. Suppose if I said that here one note, you please remember, in this case, you remember here note. If you write here A is subset of B, na? This please remember here. I want to introduce one more word here. Here, if A is subset of B, for example, if remember that people are going to use this to make you confused, then you can say that B is called what? A superset. Okay, superset of A. Remember, B is called what? Superset of A. And you can write like this also. उल्टा ऐसा भी लिख सकता है भाई तुम ऐसा you can write like this also. So don't get confusion. Here superset means what? Means don't worry. Proper subset is very very important, not superset. Superset means बड़ा वाला यार, कुछ भी नहीं रहेगा, जो बड़ा रहेगा वो लिखना पड़ेगा, सुपरसेट बोलेंगे वो हो जाएगा, इतना ही है. लेकिन आप सीखना है ये प्रॉपर सबसेट सीखना है और नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट सीखना है. इसके बाद देख भाई, ओके आफ्टर दिस वन व्हाट यू आर सपोज टू लर्न मींस after this you are supposed to learn power set now. ओके पावर सेट यार एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, उसके बाद में डेफिनेशन लिख देता हूँ. सोच ले यार, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 दे दिया, एक सेट दिया, and power set of a is denoted by like this now, p of a. What I am writing, all the subset of a. What are the subset of a? वन एलिमेंट के पूरे एलिमेंट्स होंगे ना, ए हो जाएंगे, और दो दो के होंगे 1 2 2 3, दो दो एलिमेंट वाले सबसेट्स होंगे 3 1. उसके बाद खुद ए होगा, ए होगा. ठीक है यार, ए लिखना अच्छा नहीं रहता, एक सबसेट तो ये पूरा लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे. उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट भी लिखेंगे. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर, दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए. राइट, वही मैं अभी डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ. See, whatever I said it to you, that the set of all subset of given set A is called power set of A and it is denoted by P of A. The number of elements in P of A is denoted by N of P of A. That is what 2 to the power of N of A. देख ले भाई, ये example है. Here in this example, you see that. Suppose if I said that N of P of A in this example, what is N of P of A means? 2 to the power of N of A. N of A में कितने elements है? 3 है. देख ले भाई, 8 1 2 3 4 5 6 7 8. बराबर है. Okay. I hope that you people have catch this particular point. ये याद रख लेना यार, इसमें हो जाएंगे. राइट हाँ. अगर से कोई पूछा डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बोले तो क्या लिखेंगे? तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बोले तो क्या लिखना पड़ेगा यार? इसको तो डेफिनेशन दे क्या, 2 टू द पावर ऑफ एन ऑफ ए लिख दे और -1 लिख दे. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बोले तो ऐसा क्या यार, यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ, इसको लिख देंगे यार रेड में, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज क्या रहता भाई, 2 टू पावर ऑफ एन माइनस, ये 1 क्या है, वो 1 सेट इटसेल्फ वी हैव टू रिमूव. ओके, ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए में कितने रहता है भाई, 2 टू पावर ऑफ, ये क्या है, ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स बोले तो 2 टू पावर ऑफ एम आएंगे, और नंबर ऑफ यहाँ पे 2 टू पावर ऑफ एन ऑफ ए -1 हो जाएगा. ये याद रखना है प्रॉपर सबसेट, यानी कि वो सेट खुद नहीं होगा, समथिंग इज डिफरेंट हियर. यहाँ पे बोला था ना एवरी सेट सबसेट टू इटसेल्फ, बोला था ना, वो नहीं है यहाँ पे, ऐसा लेना पड़ेगा अपने. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. कुछ तो अभी देखो नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट वन क्या बात करेंगे यार, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट यार, इसका डेफिनेशन उतना खास नहीं है, फिर भी आपके लिए लिख देता हूँ, देख लो. तो तरह डिस्कस करा यार. If there are some sets under the consideration
then there happens to be a set which is superset of each of given sets. For example, चल यार मैं ऐसा बोल देता हूँ एग्जाम्पल लेके, देख भाई 1 2 3 ले लिया और बी मैं तेरे लिए ऐसा लिया 4 5 2 6 ऐसा कुछ ऐसा लिया, तो यार मैं यहाँ पे सी ले रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट को मैं यू म्यू से बोल सकता हूँ या नहीं, सी नहीं कुछ और ले लिया, चल समझ। और चल यहाँ तेरे लिए सी बोला था ना, 1 3 5 7 ऐसा कुछ लिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा ले लिया। सो म्यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं यार यहाँ पे, वट एवर द सेट्स वी हैव टेकन ए बी सी, नॉट ए बी सी, all these sets are what subset to this. It's the biggest set. Okay, if you consider this three sets, example universal set is this is the universal set. Now come to the next one. Come to the next one here. यहाँ पे यार बताना चाह रहा था मैं Venn diagram सब बताना चाह रहा था. Okay, what is that, Nana? Venn diagrams I have to show you. What is that Venn diagram? Venn diagram. देख भाई, वेन डायग्राम से कुछ बताना चाह रहा हूँ, आराम से देख लो, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे। A and B are two sets are there. Suppose A and B are two sets. If I mark like this, okay, all the elements of set. This is called A union B. Means element belongs to A or belongs to B or belongs to both. दो भी हो सकता है, इसको बोलते हैं A union B. अब उसका स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ यार, टाइम नहीं है उतना। Right. Now come to the next one. This is suppose A and B, and elements which present in A as well as in B and है यार, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। राइट, कम टू द नेक्स्ट वन यार, देख भाई ऐसा लिख दिया A and B है, एलिमेंट विच इज देयर इन B A नॉट इन B नॉट इन A इंटरसेक्शन B, राइट, ओनली A, इसको क्या बोलते हैं यार, ऐसा लिखते, ओनली इन A नॉट इन B ऐसा। और एक देख भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर से B मैंने से लिखा तो क्या होगा, मैं वेन डायग्राम में शेड करके बता रहा हूँ, देख ले भाई, दिस इज कॉल्ड बी माइनस ऐसा होगा, ये यूनियन बोलेंगे, ये इंटरसेक्शन बोलेंगे, ये सबट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, पेज पलटा दे रहा हूँ यार, देख ले अभी, अगर से मैं ऐसा दिया, देख भाई ऐसा दिया, ये बी है, मैं इसको मार्क करा ऐसा और इसको मार्क करा, तो इसको क्या बोलते हैं, ए डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। इसको क्या लिखना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यार इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में से तू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकाल दे, ए। ओके, अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए भाई, दिस इज ए होगा, ए इंटरसेक्शन का होगा, राइट। अब यार यहाँ पे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप लोग को समझ जा सकते हैं, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होगा, देख भाई ऐसा दो अलग अलग सेट्स है, ओके, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जिस सेट का नल सेट रहेगा ना, दैट मीन्स नथिंग इज कॉमन इन दिस, दोस टू सेट्स आर कॉल्ड व्हाट, डिसजॉइंट। उसके लिए डेफिनेशन लिखो बोले तो लिख देते, टू सेट्स ए एंड बी आर such that they do not have any element in common, so that's why we can call it as what, disjoint set बोल के लिख देते, वही लिख देता हूँ यार, देख whatever I said, two sets A and B are such that they do not have any element in common. Okay, two sets A and B are such that they do not have any element in common is called, are called, that is called what, disjoint set sets। अरे यार और एक एग्जांपल ऐसा भी दे सकता हूँ, 1 3 5 7 ऐसा ले लिया और B ऐसा लिया, समझ, 2 4 6 8, simply I can say that A intersection B is equal to what, so this is also one of the best example। ये तो डायग्रामेट से समझ लेना, यानी तो ऐसा एग्जांपल भी मैं दे दिया। ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तो बता दिया, सम रिजल्ट्स लिखेंगे यार, इनके इनके रिजल्ट्स मैं लिख के बताऊंगा अभी। ये वेन डायग्राम्स में 4 5 दे दिया था ना, उनके रिजल्ट थोड़े बहुत लिख के बता देता हूँ, जस्ट यू सी दिस ना। Yeah, symbolically I indicated here A union B, intersection B, A minus B, B minus A, like this, no? Some important, see, remember, important.
टेंट. ओके, रिजल्ट क्या रहेगा? हमेशा याद रखो यार, a minus b never equal to b minus c. Yeah, this is never. And if you remember, this is first one. Second one is a minus b, b minus a, and a intersection b. Simply you can say that are disjoint. Okay, or disjoint sets. पूरे पूरे के पूरे disjoint sets है. यार याद रख भाई, a माइनस बी क्या होता? सबसेट ऑफ ए होता. और एक भी क्या है भाई? b माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ b होता. तो वो यार वही a माइनस फाइव इज सबसेट इज इक्वल टू ए होगा. अगर से तू लगा दिया ऐसा, सबसेट तू लगा दे रहा, यहाँ पे क्या होगा? ए ही होगा ना, ये होगा. और याद रख, a माइनस ए होता क्या है भाई? फाइव होगा. ये भी याद रखेगा. ये 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बोलते हैं 3. अब सिमेट्रिक डिफरेंस का तो मैं बता चुका हूँ यार आप लोगों को. लिखने का तरीका यहाँ पे पूरा लिख के बता दिया. सिमेट्रिक डिफरेंस बोल के मैं लिख के बता दिया. अब आता है यार यहाँ से, अब अपन बात करना व्हाट इज द नेक्स्ट वन वी आर सपोज टू डिस्कस. मींस दिस इज द वन व्हिच वी हैव टू डिस्कस नाउ. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. यार मैं वेन डायग्राम से पहले बता दूं, उसके बाद डेफिनेशन लिख देता हूँ. देख भाई, दिस इज यूनिवर्सल सेट. दिस इज व्हाट? ए. तो यार ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिखते हैं. मतलब क्या है? म्यू माइनस ए इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट. राइट? दिस इज, you see this, I am going to write the definition now. So whatever I said that I wrote here, Nana, if mu is a universal set and A is a subset of mu, then the complement of A is the set which contain those elements of mu, okay, which are not contained in A, denoted by a complement. यार डरो मत यार, सिंपली सी लिख देते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल 1 2 3, यहाँ पे 10 है. देख भाई, ए इज इक्वल टू, अगर से मैं दे दिया समझ, 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ दिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यार? ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 हो जाएगा. देख ले यार, ए में नए जो एलिमेंट्स इसमें है, लेकिन ये दो एलिमेंट्स इसके दो भी इसमें रहेंगे. तो ये यही है ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, इसके थोड़े प्रॉपर्टीज है, वो जल्दी जल्दी लिखना चाह रहा हूँ, जरा देख लो यार. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन? लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. हाँ, प्रॉपर्टीज देख ले मैंने. क्या लिखूं यार? प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. देख भाई, अगर से मैं बोल दिया म्यू, म्यू डैश, मतलब म्यू माइनस म्यू होगा ना भाई, तो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा. राइट? वही मैं एम्प्टी सेट को डैश बोला, म्यू माइनस फाइव लिखना पड़ेगा, तो तेरे को क्या होगा? म्यू हो जाएगा. अब देख भाई, ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यार? म्यू होगा. वही ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यार? नल सेट होगा. कुछ नहीं है. और ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए ही होगा यार. और एक भी याद रख लो, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा. वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा. यार ये दोनों को मिला के अपन अलग से नाम दिया, क्या है? डी मॉर्गन लॉस. इसको क्या बोलते हैं यार? डी मॉर्गन लॉस. कितने हैं देखो? 1 2 3 4 5 6 7. देख भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. आई वॉन्ट टू गिव टोटल क्लैरिटी. अगर से एक बार तू देख ले, once if you go through these all things, you shouldn't have any kind of doubt. Any question you comes in the exam, you should be in a position to answer it. Okay, theoretically you should not be lagging. Right? तो यार यहाँ पे इसके बाद देख भाई, मैं क्या बता रहा हूँ अभी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिख दिया. अब मैं बताना चाह रहा था भाई, देखो, what I want to say here afterwards, algebra of sets. Okay, algebra of sets. इनके नाम बाद में लिखता हूँ यार, पहले मैं लिखते चले आ रहा हूँ. देख ले भाई, इसको क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट बोलते हैं. ये यूनियन ए लिखा तो क्या होगा भाई? ये होगा ना. ए इंटरसेक्शन ए भी लिख ले, क्या होगा? ए. इसको क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट. बाद में लिखते हैं यार, नाम लिख देंगे भाई, पहले आपको बता दूं, उसके बाद देखेंगे. कॉम्पिटेटिव देख ले. कॉम्पिटेटिव क्या होता है यार? ए यूनियन बी इज इक्वल टू
बी यूनियन ए हो जाएगा, वही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। ये एसोसिएटिव होगा यार, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। वैसे ही इसको भी इंटरसेक्शन में भी लिख देंगे यार, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा होगा। ये क्या है? एसोसिएटिव। ये क्या है? देख भाई, आइडम्पोटेंट है, ये कॉम्पिटिटिव है, ये एसोसिएटिव है। और ये फोर्थ वन देख ले भाई, आइडेंटिटी। देख आइडेंटिटी कैसा लिखेंगे यार, ये यूनियन फाइव इज इक्वल टू ये होगा, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव होगा। तो ए वही मैं यूनियन में लिखा, म्यू वगैरह से लिखा तो म्यू होगा, ए इंटरसेक्शन म्यू लिखा तो ये भी क्या होता है यार, ये ए हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा यार, ए हो जाएगा। दिस इज व्हाट आइडेंटिटी। एसोसिएटिव बोल दिया, कॉम्पिटिटिव बोल दिया। ओके, ये एसोसिएटिव बता दिया, कॉम्पिटिटिव बता दिया, आइडेंटिटी बता दिया। अब यार और एक लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस बोलते हैं, तो कैसा लिखेंगे? ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, समझ भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये यूनियन बी। देखिए यार, इसको कैसा लिखते हैं, देखिए, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी, ऐसा लिख लेते, राइट। वही मैं ऐसा लिखा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कोई झंझट की बात नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा मैं लिखना है। और वैसे ही मैं ए माइनस बी यूनियन सी लिखा, थोड़ा चेंज होगा भाई, ए माइनस बी, ये क्या होगा यार, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए माइनस सी होगा, राइट। ये इंटरसेक्शन है, नॉट ए। चल भाई, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है। वैसे ही अगर से मैं ऐसे लिखा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिखा, तो उल्टा हो जाएगा यार, ए माइनस बी, ये यूनियन हो जाएगा ए माइनस सी, ऐसा होगा। ओके, यहाँ तक तो देख ले भाई, इनके नाम लिख देंगे यार, 1 मिनट। देख भाई, सी गाइस, if A and B are two sets are there, you remember this now. If A is a proper subset of B, then this is going to be happen. A union B क्या होगा यार, ये यही होगा, ये सबसेट है ना, यही लिखेगा। इंटरसेक्शन भी क्या होगा, यही होगा। अगर से ए माइनस बी ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। ये देख भाई, ये तो ऐसा लिख ले रहा ना, ये है, सिर्फ ये है, तो ये माइनस में से इंटरसेक्शन भी निकाल दे, होगा। या नहीं तो ए यूनियन बी में से बी निकाल दे, वो भी सही है। ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा। अरे ये यूनियन बी को माइनसेस में लिख ले, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, अरे इंटरसेक्शन बी पूरा भी यूनियन लिख ले, तो ए यूनियन बी हो जाएगा। A minus B is always remember this. This is our useful in probability also. A intersection B complement. A minus B union B क्या होगा? A union B होगा। A minus B intersection B क्या होगा? null set होगा, क्योंकि there is no, nothing is there in this one. अगर से A is subset of B है, एक B complement is subset of A complement होगा। A minus B हमेशा याद रख लेना यार, B complement minus A complement हो जाएगा, राइट। और कुछ है? और नेक्स्ट पेज में लिख लो तुम, देख लो यार। देख, ए माइनस बी बी माइनस ए अगर से सेम हो गया, सब क्या है यार, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन जब सेम हो रहा होगा तो ए यूनियन बी हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में एक दो तीन प्रॉपर्टीज है यार, वो तो प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ये है, एक दिस इज द अदर वन, अदर अनदर वन इज दिस वन। ये तीन प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से याद रखो। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज हियर, properties on, I want to write here some important results. I have to say like this, some important result on cardinal number like this. See guys, some more points, important results. These are all are finite sets ABC, and mu is a universal set. So complement means like this, A union B, you can write this is standard formula, remember. तो यार मेरे ख्याल से ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, दिस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो, ये पता होना, ये दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू नो डी मॉर्गन लॉ, दिस एंड दिस टू आर डी मॉर्गन लॉस, बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट। ए इंटरसेक्शन बी को तो ऐसा लिख सकता है यार, इसे मिला भी, ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या लिख सकता है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ B intersection C, N of C intersection A,
प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भाई यहाँ पे मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ, देख लो यार। आई वुड लाइक टू शो यू बाय ड्रॉइंग द वेन डायग्राम हियर। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर थ्री सेट्स ए बी सी। दिस is what n of a intersection b intersection c, not n of number of element बोल सकते हैं, लेकिन इसको n of a intersection b intersection c बोल दे सकते हैं। पूरा में तीन ऑफ इंटरसेक्शन है ये होता है। खाली तो ये एरिया लेगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये एरिया लेगा बी ए इंटरसेक्शन सी होगा, ये एरिया लेगा बी इंटरसेक्शन सी होगा, ऐसा है। राइट, इसलिए when the after drawing the diagram you can think about it and you will come to know many things now. And one last most important one, with the help of maxima minima, I want to introduce that I want to introduce. तो वो जरा देख लो यार, नेक्स्ट पेज में बाजार चले जाएंगे। Yeah, see this guys, ऐसा होगा यार। मिनिमम ऑफ दिस वन लिख ले सकते हैं यार, कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल चलो देखेंगे। मैं काम करता हूँ, ए इज इक्वल टू 8/1 2 3 ले लिया, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसे चार ले लिया। राइट, टू सेट्स बोल के बोला ना, ए एंड बी आर व्हाट, टू सेट्स बोला, कोई भी दो टू सेट्स ले लिया। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, अगर से मैं पूछा तेरे को ऐसा, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का मिनिमम क्या होगा। तो यार देख, मैक्सिमम ऑफ मैं क्या लिखा है इसमें, एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ बी क्या है 4 है, 3 and 4, ये दोनों का 4 है, तो यही होगा ना। मैक्सिमम क्या होगा ए बी का, यही होगा ना। ए यूनियन बी बोले तो कितना होगा, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 होगा। अगर से ये डिसजॉइंट सेट्स ले लिया तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। If I take disjoint set A and B are what two disjoint sets, then you will come to know so many things now. Okay, so many things are A union B बोले कितना था, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा। Okay, if these two are disjoint, then I think it is correct. 4 5 है, 1 minute, sorry। ऐसा है, सिंपल से एग्जाम्पल से ऐसा एग्जाम्पल्स दे लेके आगे बढ़ जा रहे हैं। Now we'll discuss some 25 questions in this one, 25 to 30 questions, including PYQs. One by one, we'll discuss Nana. Okay, total theory I discuss here. And now I would like to go for questions. Questions करेंगे यार, हम around 25 to 30 questions करेंगे बस है इसमें। Okay, right, here is a question. ये ऐसा दिया, दे के बोला 4 ऑप्शन ऐसे दीजिए, इसमें क्या होगा। एक भी क्वेश्चन मैंने क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट बोल के दिया, कॉम्प्लीमेंट ये। तो इसको कैसा लिखता भाई, ए, इसको देख यार, इसको कैसा लिख सकता, ए इंटरसेक्शन ही लिख, तो ऐसा लिख सकता ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सॉरी क्या लिख सकता भाई इसको, कोई डी मॉर्गन लॉ में जो है ना, वो कंडीशन के मुताबिक क्या लिख सकता भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख ले सकता था। अब ये रूल्स अभी तो बताया था मैं, ये रूल्स के मुताबिक इसको क्या लिखेगा भाई, ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, और यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डैश लगा दे, कॉम्प्लीमेंट लगा दे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। इसका क्या होगा तेरे को पता है, ये अलग है, बी कॉम्प्लीमेंट अलग है, ये इंटरसेक्शन अलग है, पूरा स्टोरी अलग है इसका। दोनों का भी क्या होगा, रिजल्ट अलग होगा। सो दिस योर आंसर, राइट। विल मॉड द नेक्स्ट वन। यार ये देख क्या दिया मैंने, तो देख भाई, 1 स्क्वायर कर ले 1 आएगा, ओके, 2 स्क्वायर कर ले 4 आएगा, 3 स्क्वायर कर ले 9 आएगा, 4 स्क्वायर कर ले 16 आएगा। तो यार ये हो रहा क्या, इसको देख के बोल दे सकते हैं यार, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर
where n belongs to n, नेचुरल नंबर का तो स्क्वायर है पूरे, वही होगा, मतलब ये आंसर होगा तेरा। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन पे जाएंगे। See this question. If the set of factors of a whole number n, मजेदार है यार, इंक्लूडिंग n itself n होता बट नॉट वन, उसका फैक्टर्स में वन तो कंपलसरी रहेगा लेकिन वन नहीं लेगा, तो अभी उन्हें क्या लिख रहा, मतलब इसका क्या क्या दिया, उन्हें क्या दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल F16, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन दैट वी आर गोइंग टू राइट ना, दैट वन वी आर नॉट गोइंग टू राइट, सो टू हो सकता, इसका क्या हो सकता, फोर हो सकता, एट हो सकता, 16 भी हो सकता, करेक्ट ये होगा। तो ये 40 का क्या होगा, देख भाई इसका देख, टू होगा, फोर होगा, फाइव होगा, फैक्टर्स है ना, एट होगा, टेन होगा, ट्वेंटी होगा, फोर्टी होगा, लेकिन वन नहीं लिखना है क्योंकि उन्हें बोला ऐसा डिफाइन नहीं करना है। तो यार उन्हें बोल रहा क्या अभी, F16 इंटरसेक्शन F40 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल के दिया, चल भाई ये लिख देंगे, 2 4 8 16 ये है, और इंटरसेक्शन देख भाई, 2 4 5 8 10 20 40 है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, सही ना, ये दोनों के इंटरसेक्शन ले लें, 2 4 8 मिलेगा अपने को, एफ ऑफ एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एट लिखते थे, एट को तो 2 4 8 होगा ना, वन तो नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एट एज द आंसर, समथिंग दिस डिफरेंट हियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डन, ए डेल्टा बी फाइंड आउट करना है यार, तो तू करेगा क्या, ए माइनस बी कर यूनियन बी माइनस ए कर, ये दोनों का तो इंटरसेक्शन है, ये तो ये तेरी मर्जी है यार, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी लिख ले, इसमें से इंटरसेक्शन बी निकाल दे, वो भी करेक्ट है, जो चाहे वो कर भाई, दोनों में से माइनस इंटरसेक्शन है, तेरी मर्जी, तो जो लिखना है लिख, देख ये यूनियन बी लिख लो, ये यूनियन बी में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, उसके बाद ये इंटरसेक्शन बी लिख लो, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन में देख 2 3 4 है, तो यार ये डेल्टा बी तू जब लिखेगा तो इसमें से निकाल ले भाई, 1 2 3 4 5 6 में से यू जस्ट रिमूव 2 3 4, निकाल दे भाई, क्या बचेगा, वही आंसर निकल, वन है, फाइव है, सिक्स, 1 5 6 इज योर आंसर। ठीक है, चल भाई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देख भाई, two sets have m and n elements, if total number of subset of the first set is 56 more than that of the total number of the sets subset of the second, the values of m and n respectively are what बोल रहा, तो यार what exactly he has given here, 2 to the power of n of a ऐसा दिया, minus 2 to the power of n of b is equal to 56 बोला, दिया ना, तो यार सर समझ ले, m ले लिया, n ले लिया, 56 आ गया, लिखना सिंपल सिंपल सी बात है, यू बेटर टेक 2 टू द पावर ऑफ n कॉमन है ना, 2 टू द पावर ऑफ m माइनस n आएगा, -1 होगा, देख यार इसको क्या लिखते हैं, 8 8 7 56 लिख सकता है, यार देखिए दो प्रोडक्ट ये हो सकता है लेकिन ये कंपलसरी, 2 टू पावर ऑफ n इज इक्वल टू 1, कंपेयरिंग इट विल बी लाइक दिस, 2 टू पावर ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू पावर ऑफ 3, सो n इज इक्वल टू, अब बना क्या, 2 टू पावर ऑफ m माइनस n -1 इज इक्वल टू 7, 2 टू पावर ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू 2 टू पावर ऑफ 3, तो m माइनस n इज इक्वल टू 3 है, तो n 3 लगाए तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, आंसर क्या होगा यार, 6 एंड 3, m एंड n बोला ना, ये आंसर, क्लियर है, फैंटास्टिक, ठीक है, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस ना, a to the power of a to the power of a to the power of 4 7 and minus n is given, yeah I would like to take that 7 and -1 ऐसा लिख लूँ यार, इसको मैं देख 7 + 1 बाइनॉमियल थ्योरम थोड़ा हेल्प ले लेते, 7 and -1, तो यहाँ पे क्या होगा देख, n c नॉट 7 to the power of n, n c 1 7 to the power of n -1, ऐसे ही चलेगा, राइट, n c n -1, n से n -1 क्या होगा, तो n -1 से बेहतर है
एक काम करते हैं, n-2 तक ले लेंगे, 7 स्क्वायर हो जाएगा, एन सी एन माइनस वन 7 होगा, एन सी एन होगा। Clear that I can write as nc naught 7 to the power of n, nc1 7 to the power of n minus 1, so on, nc n minus 2 7 square 7 to the power of 7 square minus this is 7n plus 7n sorry plus 1। लेकिन यार क्वेश्चन में -7n -1 भी है ना, -7n -7, मतलब ये दोनों को कैंसिल कर ले, बचा गया 7। So 49 into something m you can write, 49 into something m, so multiple of, you can say that multiple of 49, right, multiple of 49 आप लोग लिख सकते हो for all n belongs to n, ऐसा हो जाएगा, ये है। अब यार उन्हें नेक्स्ट सेट क्या दिया, नेक्स्ट सेट में देखो यार b क्या दे रहा उन्हें, ऐसा दे रहा 49 n minus 1 बोला, such that n belongs to n बोला, ये such that है, ब्रैकेट नहीं, सॉरी, ऐसा दिया, मतलब बहुत क्लियर है भाई, 1 सब्स्टिट्यूट कर 0 हो जाएगा, उसके बाद 49 आएगा, उसके बाद 49 इंटू 2 आएगा, ये चलते रहेगा भाई ऐसा। तो क्लियरली यहाँ पे इट्स अ मल्टीपल ऑफ 49 है, यहाँ पे 0 भी है, सो आई कैन सी दैट दिस इज माय आंसर, यार दिख रहा है यार, ये है, सो ए इज सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज अ perfect answer। Okay, we'll move on to the next। Okay, see this question, what, how many elements are there? One element is this, another element is this one, yeah, you know very well, p of a I have to write, what is that, this is one answer, this is another answer, okay, और ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये 5 भी रहेगा, ये भी रहेगा 5 भी रहेगा, दिस इज वन, यस, तो यहाँ पे भाई ए और यहाँ पे 5, ये मैं थोड़ा गड़बड़ पे लिखा है, ये मैं सही सही नहीं लिख पाया, ओके, ये 5 है, एक ऐसा है, ये डबल है, और चल इसको अंदर ले लेंगे और लास्ट में 5 लगा लेंगे, ये है आपका सही आंसर, ये परफेक्टली आपका आंसर ये होगा, ठीक है। देख भाई, मैंने क्या दिया, 3n दिया, 3n का मतलब क्या है भाई, पूरे नेशनल नंबर से लिखना, 3 6 9 12 15 18 21, यह चलते रहेगा, पर यार ये 7n का मतलब है 7 14 21, ऐसा चलेगा, उन्होंने बोला 3n इंटरसेक्शन 7n, तो इसमें क्या होगा, देख यार 21 तो पक्का पता चल रहा, 21, मेरे ख्याल से इसमें 21 इंटू 1 रहा, तो 21 इंटू 2 रहना चाहिए, तो क्योंकि एन 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 बोल के दिया ना वैसा, तो 42 रहना चाहिए, देख यार 42 3 से आता, यस जा रहा, ऐसा रहेगा, मतलब क्या होगा, 21 तो बाहर निकाल दे तो तेरे को आता 1 2 3, ऐसा सब नेचुरल नंबर होगा, मतलब 21 इंटू 21 एन होगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है, चल भाई आगे बढ़ लेंगे। फिर 2025 का एक क्वेश्चन लेंगे, गाइस आई वुड लाइक टू टेक वन क्वेश्चन गिवन इन 2025, a is equal to 1 2 3 up to 10 is there, and b set is defined m by n and belongs to a, these are what natural number less than 10, m should be less than n, that means denominator should be what, more than numerator, ऐसे के कैसे सेट, कितने सेट, gcd of this two should be what, equal to 1 रहना, ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन फैक्टर एम एन एन का डिविजर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, तो अब क्या होगा, ठीक भाई ये नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, तो 1 तो नहीं ले सकता दोनों में, दो तो 1 नहीं हो सकते, तो अब क्या कहाँ से शुरू करेंगे, एन इज इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे, तो एन इज इक्वल टू 2 से मैं शुरू करा तो ये क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ इसमें,
एक आ गया, इसका एसिडी ऐसा है, n इज इक्वल टू 3 लिया मच, तो ये कैसा होता, 1 3 और 2 3 हो जाएगा मेरे ख्याल से ऐसा, ऐसी समझ ले यार, 1 2 2 3 ऐसा हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू 4 मैं लिया, तो अब यहाँ पे होगा क्या, देख 1 3, सॉरी नहीं 3 नहीं, ये n 4 लिया था ना, 4 लगाना पड़ेगा मुझे, 4 लगाना पड़ेगा। और ये मैं 4 लिया तो 2 नहीं लेना पड़ेगा मुझे, 3 4, क्योंकि 2 हो जाएगा उसमें, गड़बड़ हो जाएगा उसमें, तो ये ऐसा हो जाएगा। और n इज इक्वल टू 5 लिया, तो यहाँ पे क्या क्या आता है देख भाई, 1 5 2 5 3 5 4 5 आएगा, 5 5 नहीं लेना पड़ेगा मुझे, नॉट पॉसिबल। n इज इक्वल टू 6 ले लिया समझ, तो यहाँ बनता क्या है, 1 6 बनेगा, 2 6 नहीं लिख सकता, 3 6 नहीं लिख सकता, 4 6 में भी 2 है, 1 ही रहना कॉमन जीसीडी, तो यार 5 6 लिख सकता हूँ मैं, एक ही रहेगा इसका। अब n इज इक्वल टू 7 तक ले, 10 तक जाना है, 10 है ना होता है, तो 1/7, हाँ ये आएगा, 2/7 आएगा, 3/7 आएगा, 4/7 आएगा, 5/7 भी आएगा, 6/7 भी आएगा, लेकिन 7/7 नहीं आएगा। हाँ, n इज इक्वल टू 8 देख ले यार, 8 पर फिर यहाँ पे थोड़ा उड़ जाएंगे, 8 आएगा, और नंबर देख ले, 5 ये आएगा, 7 ये आएगा, 9 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन एन ही है ना, m इज लेस देन एन है, सीसीडी एन ही रहना बोला था, तो मैं ऐसा लिया, 8 का 7/8 तक ले लिया। अब भाई और एक बात बनती है मेरी, n इज इक्वल टू 9 की यार, n 9 ले लिया तो क्या होता देख लेंगे एक बार, देख यार 1/9 नहीं का आएगा, 2/9 भी होगा, 3 से नहीं आएगा, 4/9 होगा, 5/9 होगा, 7/9 होगा, चल यार 8/9 होगा, जीसीडी जिसका 1 है ना डिफरेंस, वो आएगा। 10 भी लेना पड़ेगा अपने, 10 का कितना होगा देख, सेट 1/10 होगा, 2 नहीं ले सकता, 3/2/5 1 वो अलग हो जाएगा, 2/5 जीसीडी अलग होगा उनका, 5 भी नहीं ले सकता, 7/10 ले सकता हूँ, और क्या ले सकता हूँ, 8/10 नहीं ले सकता, 9/10 ले सकता, यस। देख भाई यहाँ पे कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, ये सब ऐड करके बोल देना चाहिए भाई, कितना होगा देखिए, अरे 10 10 20 20 36, ठीक भाई, ये 10 10 20 20 20 31 ये होगा तेरा एन ऑफ 20 तक। एक अच्छा क्वेश्चन था यार, चलिए मॉड द नेक्स्ट, सेट्स में डिवाइडेड थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन यार इसका मतलब क्या है, a - b है, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये b हो जाएगा 1 2, चल भाई यहाँ पे क्या हो रहा देख ले, 3 4 5 6 ये आएगा, और a/b है, फिर ये में से निकाल दे, 1 2 3 4 5 6 में से ये निकाल दे, 3 4 5 6 निकाल दे, बना क्या, 1 2 बचा हुआ है, ओके, तो लेफ्ट आउट 1 इज 1 2, 1 is nothing but what, set b, what is the answer, set b is the answer. So you have learned some new symbol in this question, nothing else. Interesting one, intersection b, a complement intersection b complement दिया, by using the De Morgan law I can write a union b whole complement, yes, this is nothing but n of u minus n of a union b I can write, so n of u mu is what, 700, and n of a union b means n of a plus n of b, n of a intersection b, yeah, this is the one, is there है ना, n of a 200 है यार, n of b 300,
enough intersection B like this. So 700 minus 400. So your answer is what? 300. Enough intersection B, A complement intersection B complement is 300. Is your answer. Okay, we move on to the next. One more good question. That is what 48, 28, 38. He has given enough A, enough B, enough B minus C is also given. And he's asking enough A intersection B whole complement पूछ रहा. ये क्या होगा यार? N of A intersection B whole complement दिया. इसे कैसे लिखना है? How to write? N of mu minus N of A intersection B लिख देंगे भाई. The best thing is this writing this. हाँ अभी देख भाई अब to know this n of A intersection B करने के लिए देख भाई क्या करेंगे. n of A intersection B आना चाहिए तेरे को. अब उन्हें दिया क्या देते हैं, n of B दिया, n of B मैंने से दिया. तो इसको ऐसा लिखेंगे n of B माइनस n of B माइनस A लिख देंगे. पक्का हो जाएगा यार. देख भाई वेन डायग्राम तो ड्रॉ कर ले, तेरे को समझ में आएगा. B माइनस A. अब ये इंटरसेक्ट ये ना B में से B माइनस C, ये B माइनस C निकालना. एक पूरा B तेरा ये है. तो ये निकालेगा. यानी कि मैं ड्रॉ करे तो कैसे ड्रॉ करूं, इंटरसेक्शन पे यही आना चाहिए ना. हाउ B माइनस A. हाँ सही है, मेरे को सही लिखा है. ओके चलो. एन ऑफ बी कितना है? एन ऑफ बी है 33. ये कितना है? 20. तो मैंने कहा 21 हो जाएगा. इंटरसेक्शन बी ये आ रहा 21. लेकिन अपने को चाहिए क्या? ये इंटरसेक्शन बी कॉम्पोनेंट. एन ऑफ में कितना है? 48 माइनस 21 मतलब 27 इसका आंसर. Your answer is 20. कुछ कम 25 to 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा यार. ओके 25 मिनिमम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करूंगा. बस है आप once you come to know this all question, that is more than enough for this topic. Okay, we'll go for the next question. Okay, देख भाई क्या करना है यहाँ पे. दो कॉम्प्लीमेंट दिया, इंटरसेक्शन दिया. वेरी क्लियरली वी विल गेट इट. मैंने दिया सो क्या क्या दिया, ये दिया बहुत अच्छी बात है अपने लिए. Whatever he has given here, that is wonderful thing. And because we come across these all things while theory, so that's why we could able to do this problem. एक भाई मेरे को चाहिए एन ऑफ ए चाहिए. एन ऑफ ए लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस साथ में ए ऐड कर दूंगा. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दूंगा. देखिए ये कितना है भाई? द वैल्यू ऑफ दिस वन इज गिवन एज 4 and the value of this one is given as what 5. तो ये 9 हो जाएगा. चल भाई एन ऑफ बी चाहिए मुझे. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है एंड एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है. यार ये तो 4 है, ये 6 है, ये 10 हो जाएगा एन ऑफ बी. तो अपने को जो चाहिए वो आ गया. ए यूनियन बी पूछ रहा. एन ऑफ ए 4, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए 9, एन ऑफ बी 10, ए इंटरसेक्शन बी 4. Yeah, 19, yeah, negative 15. So this is your answer. Right? Wonderful question. On to the next one. Yes, I gave you the formula n of A union B always greater than equal to maximum of n of A and n of B. That is what 3 and 6. होगा क्या यार? ये 6 ही होगा. ये minimum number of element बोला. Okay. The number of element in this one is nothing but maximum number of this two बोला. तो 6 आ जाएगा. यार लेके देखने में क्या है यार, ये तो सिंपल सी बात है. हो गया. फॉर्मूला याद रखो. ओके, you see this, no? Whatever he has given, I'm writing here.
a minus b has given 25 plus x, and now b minus a has given, this is what 2x, and now a intersection b is also given as 2x. Okay, no problem. And the given condition is n of a 2 times of n of b. ठीक है, चलो जो भी दिया उन्हें देख लेंगे अपन। तो यार एन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? तो एक बार एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ना यार। हाउ? तो ये एन ऑफ ए माइनस बी क्या, 25 प्लस एक्स प्लस 2x है, मतलब 25 प्लस 3x आएगा। चल भाई एन ऑफ बी क्या लिखते हैं? एन ऑफ ए माइनस बी, राइट, ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए लिखना पड़ेगा मुझे। बस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी है, बी माइनस ए क्या है यार? ये 2x है, ये भी 2x है, मतलब 4x है। तो ये पूरा उन्हें दिया सा कंडीशन, इसमें डाल देना। एन ऑफ 25 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, है ना? हाँ, डाल दो। ये क्या बात तो बनती। तो अभी क्या होगा? एन ऑफ ए आ गया इंटू 2 लिखना पड़ेगा मुझे। ये दिस इज व्हाट एन ऑफ बी है, गिवन क्या है? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ बी है ना, इसमें डाल दे। तो भाई 25 इज इक्वल टू 8x माइनस 3x, 25 is equal to 5x here. X is equal to 5. X is equal to कितना आ रहा? 5. Right? We'll move on to the next one. See the question. It looks like lengthy question, but I think that this one is a little bit easy. Suppose there are A1, A2, A3, 30 sets are there. Each set will have what, 5 elements. 30 sets each will have 5 elements. So 30 sets will have what, how many? 150 आ जाएगा. And B1, B2 are n sets are there. Okay. Each set is having 3 elements. That means for totally 3 n elements आ जाएंगे इसमें। ये पूरा दिया। This is what such that इसमें से AI, इसमें से BJ, yes. Each set of yes belong to exactly 10 of AIs and exactly 9 of BJs. Okay, 9 of 9 है, 9 of BJs. Then the value of n is dash bar. मतलब बहुत सिंपल है भाई। एस देख यार क्या लिखें, एस क्या है? आई है, 30 सेट्स है ए का, इसमें कितने कॉमन है? 10 कॉमन। तो एन ऑफ एस क्या होगा? देख 10 तो कॉमन है हर एक में, तो इसमें कितने टोटल? 5 इंटू 30 है ना, कोलिक्शन 5 इंटू 30 बोले तो कितना आएगा यहाँ पे? 15 आएगा। 10 तो क्या है? वही एस है। जे इज इक्वल टू 1 टू एन है बी जे। तो यार यहाँ पे भी एन ऑफ एस होगा कितना? एक 9 एलिमेंट्स है एग्जैक्टली, इसमें कितना है? इतने, मतलब n/3 हो जाएगा। अरे दो भी सेम है यार, 15 इज इक्वल टू n/3 है, तो n क्या होगा? 15 इंटू 3 होगा, सो n इज इक्वल टू 45। अगर से 45 एलिमेंट्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, राइट? सो इंटरेस्ट क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन देखो। A set contain how many elements? 2n plus 1 elements है। Number of such subset of this set containing more than n elements. सर यार यहाँ पे देख, कहाँ लिखेंगे? Originally the set contain what, 2n plus 1 elements. दिया set contain कितने हैं? 2n plus 1 elements है। तो उसके सबसेट में सबसेट कंटेन कैसा रहना? सबसेट कंटेन कैसा रहना? n plus 1 एलिमेंट्स हो सकता, n plus 2 हो सकता, बढ़ के रहता है ना।
मोर देन बोला, ये पूरे रहेंगे, कहाँ तक रहेंगे यार, 2n+1 रहेंगे, एलिमेंट्स यहाँ तक ही रहेंगे, n+1 n+2 से यहाँ तक रहेंगे। तो अभी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे, हाउ मेनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट, देख सबसेट लिख देता हूँ सभी, आपको समझ में आ जाए तो बस सर। तो ये क्या, 2n+1 में से पहले n+1 सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद 2n+1 में से उसके बाद n+2 से सेलेक्ट कर लेना, ऐसे ही चलते जाएगा मुझे, 2n+1 में से 2n+1 एलिमेंट्स भी ले लें, ऐसा है यार। ये फार्मूला यूज करो, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी n-r का फार्मूला यूज करा, समझो। तो अभी मेरे को क्या आएगा, ये होगा क्या, वो तो मेरे को उल्टा लिख लेते नहीं तो, दिस आई थिंक इट इज गुड इफ आई राइट हियर, नहीं बोले तो इसमें सिंप्लीफाई कर लिया तो मेरे को आ जाएगा, इसमें ये फार्मूला यूज करें तो मेरे कितना आ रहा है, 2n+1 सी एन आएगा, यहाँ पे 2n+1 सी n-1 होगा, ऐसे जाएगा, 2n+1 सी नॉट होगा, सी नॉट तक जाएगा, ये है अपन। तो इसको मैं सीधे सीधे लिखूँ, 2/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई करा, 2n+1 सी नॉट, 2n+1 सी1, ऐसे जाएगा, 2n+1 सी एन तक जाएगा, है ना। अब ये 1/2, देख भाई इसको डबल लिख देंगे, डबल लिखने से मेरे को फायदा क्या होगा वो देखेंगे, 2n+1 सी नॉट, 2n+1 सी1, यहाँ पे 2n+1 सी एन, दो बार लिखना पड़ेगा, 2n+1 सी नॉट, 2n+1 सी1, यहाँ पे 2n+1 सी एन, ये रूल ही अप्लाई कर लेना है, पूरे ये रूल अप्लाई कर, ये n+1 है, ये ऐसे ऐसे आएगा पूरा, यानी कि मतलब बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख क्या हो रहा है, ऐसे आएगा मेरे ख्याल से, 2n+1 सी नॉट से चलते जाएगा, 2n+1 सी n+1 तक आएगा, ऐसा है मतलब यार, 1/2, 1+1 to the power of 2n+1 है, मतलब 2 to the power of 2n+1/2 है, तो 2 to the power of 2n into 2/2 आंसर, आंसर 2 to the power of 2, फैंटास्टिक, अच्छा है क्वेश्चन। ओके, P union Q means what ना, x belongs to R, या f of x is equal to 0 है यार, union x belongs to R, q of x is equal to 0 आ रहा, दो मिला के मैं क्या लिखूँ, what I'm supposed to write, I think it is good Nana. If I write like this, the meaning is f of x into g of x is equal to 0 means, okay, the meaning of this one is either f of x is equal to 0 or g of x is equal to 0. What is that? F of x and g of x equal to 0 meaning is, right, either f of x is 0 or g of x is 0. Yeah. So that means this is the right answer. Okay. Just think about it and write down. Okay. You see this, Nana. A survey shows that in a city of 63% of citizens like tea, whereas 76 like coffee. The next like both tea and coffee. Then what is this? Area is given A, B, C, and D options are given like this. So let us consider here. I would like to say that consider, assume that the population of the city, right? This is what assume that population, okay, of the city, okay,
of the city is 100. 100 है, 100 लोग हैं समझो यार, 100%। या यहाँ पे डिफाइड कर रहा हूँ यार, सिटीजन लाइक टी, लाइक टी, ओके। बी, सिटीजन लाइक कॉफी, ऐसे देख ले, ऐसे डिपेंड करा यार, कॉफी, ऐसा है समझो। मतलब बहुत सिंपल है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 63 हो जाएगा, एन ऑफ बी होगा क्या यार, 76% होगा। अब अब मैं ये नहीं बोल सकता कि टोटल रहता, बल्कि नहीं बोल सकता यार, क्योंकि देख भाई, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, होगा। ये अपने को पता है कि फार्मूला है, लेकिन भाई वी नो वेरी वेल दैट दिस इज अ फार्मूला, बट यू रिमेम्बर, चाय पीने वाले कॉफी पीने वाले पूरे थोड़ी पीएंगे, थोड़े तो ऐसे होंगे ना, नहीं पियेंगे ना, वो लोग भी होंगे ना, तो इसलिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू, आई कैंट से दैट एवरीबॉडी इज गोइंग टू टेक टी और कॉफी, नहीं, ऐसा होगा। तब क्या होगा देख भाई, ये एन ऑफ ए क्या होगा 63, एन ऑफ बी क्या होगा 76, वो क्या है x% है, लेस देन 100। तो यहाँ पे तेरे को आ रहा क्या, 139 है, -100 आ गया, लेस देन इक्वल टू एक्स है। मतलब तेरा बहुत क्लियर है, 39 इज लेस देन इक्वल टू एक्स है, ये 1 हो गया तेरा, दिस इज परफेक्टली करेक्ट। अब उसके बाद में क्या होगा देख भाई, इंटरसेक्शन भी क्या होगा, आपको पता है, ये इंटरसेक्शन भी तेरे को पता है एन ऑफ ए से कम होगा, ये है। तो इंटरसेक्शन भी कितना है, एक्स है, लेस देन इक्वल टू 63, या नहीं तो ये इंटरसेक्शन बी एन ऑफ बी भी होगा, सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 76 है। यार 2 और 3 मिला ले, दोनों में से देख ले, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 63 होगा, ये तेरा 4, दोनों का इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन 3 क्या होगा, ये होगा। अब 2 इंटरसेक्शन 3 इतना हो गया, तो अब आ रहा क्या भाई, तो बनता क्या है, 39 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 63 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? PYQ question, this is PYQ previous year question. What he has given sir, x plus 1 he has given, mod less than 2, मतलब बहुत क्लियर है, x plus 1 लेस देन 2 होगा यार, ये देखो -3 लेस देन x लेस देन 1 होगा, सो x बिलोंग्स टू -3 to 1 होगा, ये इसका। और x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब बहुत सिंपल है, x -2 इज लेस देन इक्वल टू -2, ओके। और x -1 is greater than equal to 2 है, x is less than equal to -1 और x is greater than equal to 3 होगा, मतलब -x belongs to -infinity to -1 यूनियन 3 to infinity ऐसा रहेगा, ओके, 3 to infinity ऐसा रहेगा। तो अब इसमें कौन सा करेक्ट है, a माइनस बी को, तो ये माइनस बी देखेंगे या बी माइनस से देखेंगे, बी माइनस से गलत क्या होगा वो देखेंगे। तो यार ए माइनस बी बोला तो बहुत सिंपल है, ए माइनस बी अगर से मैं बोल दिया तो ये पूरा इसमें आ जाएगा, -1 to 1 पक्का दिख रहा, इज नॉट ट्रू बोल रहा, हाँ, यहाँ पे देख -3 to 1 है ना, इसमें से ये निकाल देना, तो इसमें जो बचता वो लेना पड़ेगा, तो मेरे को -1 to 1 तो रहेगा इसमें, -1 to 1 ये बचेगा, इसमें नहीं है ना -1 to 1, फर्स्ट वन इज करेक्ट। बी माइनस ए जब करूं, बी में से ए जब निकाल दूं, तो क्या होगा यार, बी माइनस में से ए निकाल दूं तो -3 to 1, तो ये गया, -3 to 1 नहीं है यहाँ पे, -r -3 -1 है, ये गलत होगा,
ये हो जाएगा यार, ये गलत होगा। सो व्हाट इज द आंसर हियर? बी माइनस सी इज इक्वल टू आर माइनस माइनस 3 1। ये गलत है। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है वो बता देता हूँ। ये तेरा ए है, ये बी है तेरा, ये तेरा ए है ना। इसमें से जब तू ए निकाल दे रहा तो -3 तक ही आएगा। -3 to 1 तो यहाँ तो निकाल देना पड़ेगा। तो तेरे को एक्चुअली क्या आता, बी माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए -∞ to -3 आएगा। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज रखना पड़ेगा मुझे। यूनियन, अब ये तो रहेगा यार, थ्री टू इन्फिनिटी रहेगा। इसको क्या लिख लूँ, आर माइनस -3 to 3 निकाल दो, ये रहेगा। लेकिन उन्हें -3 to 1 दिया, इसलिए ये गलत है। और दिस इज द आंसर। ठीक है, चल बराबर। ओके, इट्स अ PYQ क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन हियर, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, ऐसे दिया। 3k+1, k बिलोंग्स टू n गिला, यहाँ पर 2k। ये ऑड नंबर्स है, ये इवन नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर कुछ दे दिया तो वो अपन बनाना पड़ेगा आगे, जरा देखेंगे। चलो यार क्या हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन। ओके, नाउ यू सी दिस, ए इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वेयर्स लिखना है अपने को। तो क्या आएगा, n लिखना है। ऐसा रहेगा कि 10,000 से थोड़ा कम है, मतलब 1 2 3 कितने हो गए एलिमेंट्स, n स्क्वायर 100 होगा तो 4 0 आएगा ना। तो यार 100 तक ही रहेगा ये। देख भाई, ये 10,000 + x है n है, तो n स्क्वायर बोले तो 100 × 100, 4 0 तक आएगा, यहाँ तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, b - c अगर से मैं बोला तो क्या होगा। b - c बोले तो देख भाई, 3k - 3k+1 नहीं लेना पड़ेगा मुझे। लेकिन k या नेचुरल नंबर है या इवन नंबर होगा, ये निकाल दे रहा, इवन नंबर निकाल। k इज व्हाट, ये ऑड नंबर है। b - c वाला k क्या होगा, इवन नंबर होगा, k इवन होगा। k इवन बोले तो b - c में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 2 सब्स्टिट्यूट कर, 7 होगा। 4 सब्स्टिट्यूट कर यार, 12 + 1 13 होगा। 6 18 + 1 19 होगा, ऐसे जाएगा। अब वो कहाँ तक जाएगा बोले तो 19, अभी देख भाई 96 आएगा। 96 + 1 97 होगा, ओके 97 तक आएगा। b - c, उन्हें बोल रहा कि ये इंटरसेक्शन b - c चाहिए उसको, a - b इंटरसेक्शन c चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अब a और इसका इंटरसेक्शन जब मिला दूं तो होगा क्या, तो ये पूरे इसमें है, बात तो यही बनेगा। 7 13 19, यही आएगा 97, यही रहेंगे ना, ये रहेगा। अब इसमें एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं वो पता चलना चाहिए ना मुझे। नहीं देख भाई 19 तो डिफरेंस कितना है, 8 है, 6 6 है। अच्छा, 97 ले लिया, 97 ले लिया तो 7 + n - 1 × 6 है, समझ, 90 हो गया। -1 ये 6 है। 6 1 × 6 6 5 30, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा भाई, 16 आ रहा। अच्छा, तो सम ऑफ द एलिमेंट बोला, 16/2, 2 × a +15 d, 6, ये होगा।
मतलब 8 into 14 plus 90 है। ये क्या हो रहा है भाई? 104 सो 104 into 8 बराबर कितना था भाई? 2 3 का 32 होगा। 8 832। दिस इज योर आंसर। गुड क्वेश्चन। Yeah, in the this is also PYQ question. An organization awarded 48 medals in event A. That means N of A कितना दिया भाई? 48 दिया. Okay, पैसा. And in N of B कितना दिया भाई? How many he has given? N of B is something 25. N of C is how much? 18 he has given. Okay, 18 he has given. So when he has given like this, and total number of men are what? 60 members are there. Total number of men are what? 60. So exactly here, see here, the three events. Okay, 5 men got medals in all the 3 events. So N of A intersection B intersection C, ये कितने दिया भाई? 5 men got all the 3 बल कैसे दिया? मतलब मैंने पूछा क्या है यार? ऐसा पूछ रहा है. Suppose if it is like this, he is asking this is this. Here N of A union B union C is equal to N of A plus N of B plus N of C minus N of A intersection B, N of B intersection C, N of C intersection A, ये पूछ रहा हूँ, प्लस N of A intersection B intersection C. ऐसा टोटल कितने मेंबर्स है? 60 है. N of A कितना है? 48 है. ये कितना है? 25 है. ये कितना है? 18 है. ये पता नहीं यार, ये पूरा कितना है? इसको x लिख देंगे. और ये पूरा क्या है? ये पूरा को मिला के x लिख देंगे. और ये कितने हैं? 5 मेंबर्स है. ठीक है भाई, चलो यार इसको ऐड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो. ओके, यू सी दिस ना, x इज इक्वल टू 48 फ्रॉम 91 96 96 माइनस 60. तो x कितना होगा? 96 minus 60 कितना होगा? 36 आया x. तो अपने को क्या चाहिए भाई? नंबर ऑफ मैन, राइट, वो रिसीव्ड. नंबर ऑफ मैन who received. Okay, who received exactly 2 medals. Exactly 2 medals. बोलो कि medals. तो वो क्या लिखना पड़ेगा? तो यार x माइनस 3 में से भी निकाल देना पड़ेगा ना. इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, हर एक में से निकालना पड़ेगा ना. ये आना इधर के दो, इधर इधर ऐड करना है ना. तो यार ये 36 है, -3 into 5 है. यानी कि यार 36 माइनस 15 है. ये बनता क्या है? 16 और 21. This is your answer. 21. Yeah, fine. Getting what? Like this. Okay, we'll move on to the next one. Yeah, we'll move on to the next question. Okay, you see this question.
In a college of 300 students, every student read 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students. Then the number of newspapers is that. Sir, do not think that always you have to use this type of formulas. No, some logic is there. Okay, let us assume like this. If n is the required number of newspaper, n is the required number of newspaper. Number of newspaper. So how many students are reading that? All newspaper, 60 students. Like, every newspaper is read by 60 students. तो n newspaper है तो 60 student पढ़ रहे हैं. अब उन्हें क्या हो रहा? 300 students are there. They are reading 5 newspaper हो रहा. तो यार पूरे कितने स्टूडेंट्स हैं? 300 स्टूडेंट्स हैं. कितने? 5 पेपर पढ़ रहे हैं. तो वही तो है यहाँ पर फंडा. व्हाट इज दैट n? n इज इक्वल टू, यार कट कर दे आ जाएगा. सो 25. Okay, interesting one. Right, we'll move on to the next. Okay, see, 800 boys are there in the school. Cricket, number of students who play cricket, 224. Number of who play hockey, 240. Okay, this is nice. Number of basketball who play basketball, how many? 336. 336. Okay, wonderful. And here basketball, okay, 64 play both basketball and hockey. Basketball and hockey, 64. Basketball and hockey, 64. Cricket and basketball, C and B, 80. Cricket and basketball. Okay. Cricket and hockey. Cricket and hockey. 40. And all in cricket, hockey, and basketball. 24. 24. So n of C union H union B. Yeah, formula. I'm using this. N of C, N of H, N of B minus N of C intersection H, N of H intersection B intersection C. Okay, C intersection H intersection B, all the three. Okay, you are going to get this. C union H union B. Okay, तो भाई एक क्या 224 240 336. अच्छा, 64 80 40 24. Okay, so required total minus N of C H U. इन गेम खेलने वालों को निकाल दे यार, बच जाएगा 800.
माइनस ये टोटल करके निकाल देंगे, राइट? अरे आई रोट एवरीथिंग हियर. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 बोला, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 में 3 6 अप टू 99 33 आ जाएगा. एपी में एन आई आर आ जाएगा. एन आर पी प्राइम नंबर्स लेस देन 20 बोला, थोड़ा सा जगह था इसलिए छोटा क्वेश्चन इसमें लगा दिया. तो अभी बचा क्या इसमें, देख भाई प्राइम नंबर्स लिख दिया, वो 8 है, दोनों को ऐड कर लिया बोला 41. ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी दे देता. ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Yeah, one last question, guys. See this one. A complement union B complement minus A whole complement is how much? And the second one is B complement union B complement minus A. Okay, minus A whole complement is how much? And here I wrote A minus B minus C is how much? A minus B. Another one is A minus B intersection C minus B is how much? Another one is what? This one, A into B intersection C, A into B intersection B union C. He's asking here these all things. Okay. अब देखेंगे यार क्या क्या बन सकता है, क्या क्या कर सकते हैं इसको. I'll write all the solutions. Now you see such a big one here. Just I'm applying this formula here, right? Then it will become what? A minus B can be written as this A and B. It can be written as like this. Using this formula, I can write like this now. And whole dash is A na. So A union B dash whole dash union. Yeah, I use this formula. I got it like this. Whole dash means finally in this way. So answer is what? A is a what? Answer. So in the same fashion, I did the same one here. The B dash union B dash intersection A dash. Also, I replace this one by this by using the formula. And afterwards, using the complement rule, this rule, I wrote like this. And finally, when I avoided this, is intersection of this two. So B is the answer. It's a difficult one. You have to take care of yourself. And after this step, after this step, see here, slowly I use all the formulas. After this, here I this one. Nothing is there. It can be written as like this. एक बार इसको लगा दे, intersection इसको लगा दे. Distributive law I used, and afterwards I write this perfectly. B complement union C is then B complement, and again I segregated this to the group, and now I got it. This is what same as it is ना. इसका वो आया यार, ये ऐसा रहता. अभी इसको ऐसा करा. इसके बाद इसका मतलब क्या होगा यार, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा. तो फाइनली क्या आ रहा, ए माइनस बी आ रहा है. दिस इज ओके, ए माइनस बी आ रहा. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ना. Very simple, Nana, here. This, by using the formula, I wrote like this, and this can be written as in this way. So by using again the formula, yeah, change into in this way. Yeah, distributive law. By using distributive law, I can write here like this. Okay. So finally, we got it. This answer. ये तो simple multiplication है यार, ऐसा लिख दो बस हो गया. So guys, I did maximum number of questions from this topic. Okay. So now it's your turn. Whatever the questions comes from this topic, do perfectly. Okay, guys. We'll meet in the next class. Thank you.